We will start today's webinar. I think many people have joined. So first of all, I will introduce myself. My name is Mohsina, and I have been teaching in coding blocks for more than 1.5 years now. I will be taking this webinar, and as you all know that this webinar will be all about the interview preparation and skill development. We will discuss the tips and tricks that should be in one's mind while going in the interview, and we will discuss other things as well. The things that you should consider, the things that you should have with you while going in an interview. Yeah, I think now so many students have joined. First of all, can you please let me know that in which year you currently are, and do you know some other some programming language? Yeah, please write down the year in which you are currently, so that I can accordingly I can accordingly take up the session. Second year BTech CSC, first year, all right. First year studying Java, first year, third year, all right. Okay, so please, can you tell me one more thing that do you want me to have the roadmap from the very beginning, or should I start from the interview part only? Like, do you want to have full roadmap about how, like, from the very beginning, how you should start your preparation for the interview, or should I go from the interview part? Okay, from the beginning, yeah. I think it would be better to go from the beginning to the end part, because so many students are from first year and second year and third year. So they should know at least that what things are necessary and what things we should learn before going to an interview. Also, let me know in the chat that should I continue with the English, or should I go for both Hindi English, or pure Hindi? Like, I think you people can suggest. Both English. Okay, both English would be fine. English, both. Okay. So I think so many students are saying that, yeah, you should go for like English, and many students are for English. So I would try to continue with most part in the English, and then I will in between somewhere I will use Hindi as well, so that many students may not face any problem during the session. And first, I will tell you the roadmap that you should follow from the beginning to the end, and then I will take up the queries. जो भी आपकी queries होगी, I will take up those queries at the end of the session. And in between, if you think that you are not able to you are not able to understand anything, so you can in between ask in the chat section, or I can also give you the mic access at the end of the session. So I'm continuing today's session. So I hope कि आज के सेशन में आपकी जितनी भी क्वेरीज हो, वो सारी क्वेरीज जितने भी आपके दिमाग में जो पहले से क्वेरीज रही हैं कि हमें कहाँ से क्या करना चाहिए, सो आई होप कि आज के सेशन में वो सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाए. So starting with the हमारा सेशन, first you should know that for the interview purposes, you should know that the things you should first focus is any programming language. Okay. हेलो मैम, स्क्रीन नहीं दिखा रही आपकी. I have shared my screen. Isn't it visible? I have shared my screen. मेरी स्क्रीन अब विजिबल है? यस. हाँ, ठीक है. तो
Yeah, if you have joined from the phone, then you can like enlarge the screen and you will it will be visible. So first of all, for the interview preparation, you should know about any programming language. अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि कौन सी programming language? As I am discussing these things because many students are from first year, so they should know that which language to focus on and which language should they can focus later. So I would suggest that as the beginner or in second year, first year, or in third year also, that as a beginner, what you can do is you can go for the language that starts from the very scratch. Okay, I will discuss why. I will tell you the reason. देखो सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी. पहले तो सबसे पहले तो ये चीज होना चाहिए कि यू शुड नो व्हाई आर यू लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, यू शुड हैव अ गोल. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द गोल दैट दे वांट टू जॉइन ए कंपनी एंड दे वांट गो इन अ फैंग लेवल कंपनी और एनी अदर कंपनी. तो उनका ये होता है कि हमें कहीं कंपनी में जाना है, इसलिए हमें मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है. Now it becomes difficult for the students to to choose which language they should prefer. So I would suggest, out of my own experience, I would suggest, if you are a beginner and if you have the time to do the coding, do the programming, then you should either go for C++ or you should either go for Java. You can also go for C. It's not like that thing that no, you should not go. But out of my own experience, I would suggest that you should either go for C++ or you should go for Java. आई सजेस्टेड दीज टू लैंग्वेज इसीलिए क्योंकि मतलब हमारा जो सी प्लस प्लस और जावा जो हमारी लैंग्वेज होती है, दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. तो देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में बाद में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप अमेजन या किसी भी हैंग लेवल कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो कोई भी कंपनी आपको अपनी कंपनी के बारे में तो पूछेगी. तो फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजन में गए या किसी भी कंपनी में गए, तो अमेजन में यू हैव मतलब आपने देखा होगा कि देयर इज अ सजेशन बॉक्स वेयर यू लाइक राइट डाउन द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू बाय, और वहां पे नीचे बहुत सारी सजेशंस आपको उसके आने लगती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू विल राइट फॉर एग्जांपल कप, सी यू, तो आपके नीचे ना सजेशंस आने लगेंगे कि सी यू पी का बर्ड या बाकी सारे सारे सी यू पी, कुछ ऐसे सी यू से जो सजेशंस आने लगती है वो आपके नीचे आने लगेंगे सजेशन बॉक्स में. ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि मतलब अमेजन में जब आप फॉर एग्जांपल सर्च करते हो, जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वहां पे यूज हो रहा होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकएंड, यू दे कैन आस्क यू. तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बैकएंड में क्या चीजें चल रही हैं. फॉर दैट मीन्स आपको पूरा ये पता होना चाहिए कि पीछे क्या क्या चीजें चल रही होती है व्हेन वी सर्च थिंग्स, क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है. तो उसी चीज के लिए वी शुड नो एनी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज जानो, लेकिन उसको ऐसे जानो बिल्कुल फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, सो दैट यू कैन नो what is going on in a data structure, what are the things that are important for to learn, and you will learn that very data structure from the very start, from the very beginning. तो इसीलिए कोई एक ऐसी चूज लैंग्वेज करो जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होती है. नाउ यू विल से कि आपने सी क्यों नहीं बोला, क्योंकि सी थोड़ा सी प्लस प्लस इज जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सी, जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई और हमारा सी प्लस प्लस बना. सो इट्स बेटर टू गो फॉर द अ लिटिल बिट मॉडिफाइड वर्जन. नहीं तो सी प्लस प्लस में थोड़ा सा मतलब सिंटेक्स का डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट दे आर बोथ सेम. And this is because this is a little bit modified language, so it is better to go for this. You can also go for other languages as well, but I would suggest that you go for these. Now many people will ask that why not Python, why not Python? Because initially Python is a language that has so many libraries and उसमें ऐसा होता है कि सब कुछ इनबिल्ट ही है. तो क्योंकि सब कुछ इनबिल्ट ही है, तो आपको ये नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा होता है चीजें. जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस जावा में बोलूँ, तो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट. अब ये पता होता है हमें, जब हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं तो हमें पूरा बैकएंड में घुस जाते हैं कि उसमें पीछे क्या चीजें चल रही होती हैं. बट इन पाइथन वी जस्ट यूज द टर्म फॉर द लिस्ट एज फॉर द लिंक लिस्ट एज लिस्ट. हमें उससे कोई मतलब नहीं होता कि लिस्ट के पीछे क्या चीजें चल रही होती है, क्या होता है, ये बस हमें इनबिल्ट मिल जाता है और हम इसको यूज कर लेते हैं. सो वी like don't know कि पीछे क्या चीजें चल रही होती है. So it's better for a beginner. I'm not saying that you should not go for Python, but as a beginner you should go for the language that will start from the scratch, so that you may know the concepts that are going behind those data structures. So this is the reason why I said that either go for C++ or Java.
Now when you are choosing a language C++ or Java, now you should now know that what is the content that you should focus on, because you can see that there are so many tutorials that are free of cost, and there is so many content present in the YouTube. So okay, which is the most used language, Java or Python? It depends on the. I can't say that Java is mostly used or Python is mostly used. Chirasmita has asked the question, which is the most used language, Java or Python? It depends on the company that it will. Some companies will ask you for Java, and some companies will ask you for Python. No doubt, in today's in these days, Python is mostly used, but and Python has a wide range of scope. But since you, if you are a beginner and later on you can move to the Python, so it is first it is like good to go for a programming language that will start from the scratch. So yeah, obviously अभी ज़्यादा Python ही चल रही हैं, but as I give the reasons that why you should take up some other language as a beginner. Okay, I hope I have answered your doubt. Now I was on कि आपके content पे. So now coming to the content, you should know the right content जो आपको पढ़ना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो YouTube पे बहुत ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है, एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हाट कंटेंट टू रीड एंड व्हाट कंटेंट टू लीव. ओके, तो इस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए, लाइक यू नाउ हैव टू डू द स्मार्ट वर्क. ओके, स्मार्ट वर्क मीन्स यू शुड नो अबाउट द कंटेंट दैट यू शुड गो फॉर. क्यों आपके ट्यूटोरियल्स में आप क्या करोगे, यू वन डे यू विल गो टू अ ट्यूटोरियल, आप उसके दो चार वीडियोस देख के यू विल डिसाइड कि नहीं अब ये नहीं पढ़ना, तो नेक्स्ट डे यू विल स्टार्ट अनदर ट्यूटोरियल. तो ऐसे ऐसे करते करते आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए. सो बिफोर नाउ आफ्टर चूजिंग एनी लैंग्वेज, आपका एक गोल है कि मुझे इस लैंग्वेज से आप ये चीजें करनी ही है. क्योंकि देखो, आपका जब भी कोई इंटरव्यू होता है ना, तो आपके इंटरव्यू के लिए जब भी आपका कोडिंग राउंड होता है, तो दे विल नॉट आस्क यू कि आपका सी प्लस मतलब आप सी प्लस प्लस में कोड करना, आप जावा में करना, एक्सेप्ट ए फ्यू कंपनीज. लेकिन मोस्ट कंपनीज में, चाहे हमारी फैंग लेवल की कंपनीज हो या और कोई हो, दे विल नॉट आस्क यू कि आपका सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी हैश या बाकी लैंग्वेज. दे विल नॉट आस्क यू टू कोड इन दैट वेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज. दे विल आस्क यू कि किसी में भी कर लो. तो इट्स बेटर कि ऐसी लैंग्वेज सीख लो जिससे आपका बाद में इंटरव्यू में भी फायदा हो जाए. तो अब नाउ कमिंग टू द कंटेंट, तो आपका पता होना चाहिए कौन सा कंटेंट पढ़ना है. सो कमिंग फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, यू शुड नो फर्स्ट अबाउट बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज. जो भी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, तो बेसिक्स ऑफ उस लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव चूजन सी प्लस प्लस, तो आप बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ लो. और बेसिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिक्स में आपके पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑपरेटर्स वाली चीज, या आपका वेरिएबल्स क्या होता है, आपके लूप्स क्या होते हैं, आपका कंडीशनल्स क्या होते हैं. तो जो हमारी एक बेसिक लैंग्वेज, या डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो जो हमारी लैंग्वेज के कुछ कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं वो आपको जानना है. ठीक है. नाउ आफ्टर नोइंग द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज, यू कैन नाउ इजीली मूव टू द एरेज. ओके, सो इन द एरेज यू कैन मूव टू द 1D एरेज. ठीक है, और 1D एरेज में आप अभी के लिए इंटीजर और कैरेक्टर एरे, वैसे इंटीजर एरे यू कैन गो फॉर द इंटीजर एरे. जब आपने एरेज को थोड़ा इंट्रो पढ़ा, थोड़ा सा मतलब आपने देखा कि एरेज में क्या क्या चीजें होती है, क्या करना चाहिए, आफ्टर दिस एरेज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मूव टू द, आपके जो एल्गोरिदम्स होते हैं, दैट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम. सो यू कैन मूव टू सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम. अब सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम में एक एल्गोरिदम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लाइक दे विल आस्क, लाइक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस पार्ट से वी कैन हैव द क्वेश्चन, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ हमारा बाइनरी सर्च. सो interviewer, or in the interview, in the coding round, they can ask you the question from the searching. They can ask you the questions from the binary search, and it's one of the most important algorithms that can be asked in the interviews. And the sorting, about the sorting algorithms, after arrays, what you can do is you can learn about the sorting algorithms. Here I will mention some. You can learn about the bubble sort, you can learn about the selection sort, you can learn about the insertion sort. Okay, so these are some of the algorithms that you should know. After completing the arrays, you can go move to these.
वन मोर थिंग इज दैट जब भी आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एरे पढ़ा, नाउ एरे का बाद मतलब एरे का टॉपिक पढ़ने के बाद, एरे का कंटेंट पढ़ने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब मैंने एरे पूरा कंप्लीट कर लिया। जब तक आप एरे के, यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम you have, if you are in a first year then you have so many time, if you are in second के पास बहुत कम टाइम है, लेकिन ठीक है, now you can cope up. So, depending on the time, you have to decide the questions that you should do on that particular topic. For example, अगर एरीज आप कोई टॉपिक पढ़ा तो एरीज के बाद यू विल डिसाइड, आप अपनी कैपेबिलिटी, आप अपने टाइम के हिसाब से यू विल डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 क्वेश्चन डिसाइड करते हो कि आपने डिसाइड किया कि एरेज से मुझे 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो जब आपने पूरा एरीज वाला टॉपिक किया, एरीज में सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लिए, तो यू विल डिसाइड कि आप 30 क्वेश्चंस करने हैं, और 30 क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करना है। यू कैन चूज एनी प्लेटफॉर्म, लाइक यू कैन चूज हमारा लीड कोड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई वुड सजेस्ट, and apart from this I would suggest Hacker Blocks is the platform where you can practice the questions, and that is the platform of Coding Blocks where you can like get the questions and practice the questions. अब आई हैव सजेस्टेड दीज टू क्योंकि लीड कोड और हैकर ब्लॉक्स में देयर इज ऑप्शन की व्हाट यू कैन डू इज, एक ऑप्शन इज कि आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जब आप एरे का टॉपिक करते हो, लेक्चर आपने देख लिया, नाउ यू आर मूविंग टू लीड कोड और हैकर ब्लॉक्स, यू आर सर्चिंग फॉर द टॉपिक्स एरे, देयर यू कैन हैव सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ द एरे, तो आप वहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो लीड कोड या हैकर ब्लॉक्स पे ये वाली चीज, और दूसरी जो मेन चीज है, वहां पे आपको टैग वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज आपको ये भी मिल जाएगा कि किस कंपनी में, कंपनी वाइज क्वेश्चंस पूछे मतलब मिल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गूगल में कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, यू विल गेट a tag of Google there and you can like select that very tab and you will get all the questions that were asked in the previous years in the Google interviews or Google coding rounds. Similarly, you can like have the questions of other companies as well, so you can like that is why I suggested Lead Code or I suggested Hacker Blocks. Another thing is कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि why not Code Chef, Code Forces? You can go to Code Chef, Code Forces, Hacker Rank, GFG. You can go to Interview Bit. मतलब बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक दिन एक पे जंप कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन करने के लिए, दूसरे दिन दूसरे पे कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप क्या कर रहे हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे से कर रहे हो उसी पे स्टिक हो कि हाँ हमें यहीं से क्वेश्चन करने हैं, हम अभी यहीं से करेंगे। तो लीड कोड भी इसीलिए भी प्रेफर किया है क्योंकि जब आपको कल के कोडिंग राउंड्स होते हैं तो वहां पे आपका ना बस फंक्शन वाली चीज दिखनी होती है अपने कोड के लिए, एंड सेम इंटरफेस आपको लीड कोड पे भी मिल जाता है कि आपको बस फंक्शन लिखना होता है और आपका काम हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा इंटरव्यू काइंड ऑफ, कोडिंग काइंड ऑफ वो मतलब चीजें मिल जाती हैं कि आपको कैसे उस टाइम पे करना है। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट, दिस इज आल्सो द रीजन आई सजेस्टेड लीड कोड। एंड लीड कोड पे आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे लेवल के कि आपकी फैंग लेवल कंपनीज तो निकल ही जाएगी। सो कोड शेफ, कोड फोर्सेस से थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मतलब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उससे थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर आप ऑब्वियसली वो करते हो तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा इन ए गुड कंपनी। लेकिन अगर आप लीड कोड, अगर आपको फॉर द पर्पज ऑफ ओनली इंटरव्यूज एंड फॉर क्रैकिंग ए पर्टिकुलर कंपनी, फॉर दोज पर्पजेस you can you can start practicing from the lead code and that will be sufficient. So that is why either choose any of the platform and stick to it and start practicing those questions. Is there any perfect material you would prefer to the third year student? Yeah, Nihar, I would talk about that. What tips would you give to the fourth year student of CS about the data structure and algorithm? ठीक है, मैं ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेती हूँ। आई विल टेक अप दीज क्वेश्चंस नाउ। तो इसका मतलब ये कि अभी हमने ये देखा कि एरे 1D जब भी आपने मतलब कोई भी टॉपिक आपने किया तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं फॉर एग्जांपल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 30-40 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, एंड उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फॉर एग्जांपल आई विल डू 15 क्वेश्चंस जो इजी रेंज के होंगे। तो लीड कोड पे भी आपको टैग्स मिल जाते हैं इजी, मीडियम, हार्ड। सो या हैकर ब्लॉक्स पे आपको टैग्स मिल जाते हैं इजी, मीडियम, हार्ड। तो यू विल सिलेक्ट
10 या 15 क्वेश्चंस एरे के और इजी, और आप वो करोगे। आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस जो आप मतलब मीडियम लेवल के कर सकते हो, और 5 क्वेश्चंस जो आप हार्ड लेवल के कर सकते हो। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो ठीक है, आप अपने टाइम के हिसाब से ये वाली चीजें मैनेज कर सकते हो। नाउ आफ्टर दिस यू कैन मूव टू द अदर टॉपिक्स, लाइक after this topic what you can do is you can move to the topic you can have the topic of pointers, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर्स भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जावा कर रहे हो तो जावा में पॉइंटर्स नहीं होता, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो तो सी प्लस प्लस में जावा पॉइंटर होता है। यू शुड नो द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स दैट यू शुड गो फॉर। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज एक टॉपिक यू कैन गो टू द एरे, टू डी एरेज, हमारा 2D एरेज, एंड यू कैन गो टू द 2D एरेज एंड अपना जो स्ट्रिंग आता है इस टॉपिक पे। जब आप ये टॉपिक कर रहे हो, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मूव टू द सेम लीड कोड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वेरी टॉपिक। Now after doing these very topics, now it is like you can go to the other topics as well that are not connected with those topics. You can have those topics as well, like you can have the topic of bit masking, वो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। बिट मास्किंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप बिट मास्किंग कर सकते हो पहले भी। Now what you can do is you can have the topic of recursion and backtracking. This is one of the most important topic, recursion and backtracking. Okay, तो arrays में यहाँ पे आके आप character arrays भी कर सकते हो, character arrays. Now you can have the topic of recursion and backtracking. अब रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के बाद गो टू लीड कोड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब उसके बाद ना आपके इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द 3 main topics and I will write down these topics here. They will ask you from the questions from the topic that is dynamic memory allocation. They will ask you the topic the questions from the topic that is OOPS. They will ask you object oriented programming. They will ask you the questions from the time and space complexity. So recursion के बाद you can move to these topics, क्योंकि ये theoretical topics होते हैं, तो you can move to time and space complexity. जो हमारे पास अभी तक का ग्राफ चल रहा होता है ना, वो ऐसे चल रहा होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे चल रहा होता है ऐसे। जब रिकर्जन आता है ना तो बिल्कुल ग्राफ ऐसे उठने लगता है, मतलब इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी व्हाइल लर्निंग रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। तो ये हमारा क्योंकि थोड़ा ग्राफ ऐसे उठने लगता है, अब हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है। दैट इज व्हाई वी कैन हैव द थ्योरेटिकल टॉपिक्स, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल आ गई होती है। सो यू शुड नो कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए। सो इट इज बेटर टू हैव द टॉपिक्स ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक्स, सो दैट आपकी जो सैचुरेशन लेवल ऊपर गई है वो थोड़ा नीचे वापस आ जाए और आप आराम से अब चीजें पढ़ने लगो, तो आपका ग्राफ वापस ऐसे आ जाता है। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि हाँ, थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो आपके इंटरव्यू पर्पसेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन हैव दैट। नाउ आपने क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं, नाउ यू आर गुड टू गो टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ओके, coming to the data structure and algorithms, you should know what data structure and what data structures you should cover while practicing, while preparing for your interviews. So coming to the data structure and algorithm, you can have the linked list. आप linked list सबसे पहले पढ़ सकते हो, ठीक है। You should know the sequence also, कि मुझे किस sequence में क्या पढ़ना चाहिए। Why, वो मैं अभी बताती हूँ। देखो, linked list के बाद you can have the stacks and queues, okay? क्योंकि देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ तो C++ में या बाकी जावा में वी कैन इम्प्लीमेंट द स्टैक्स यूजिंग लिंक लिस्ट। अब अगर हमने लिंक लिस्ट पढ़ा ही नहीं तो हम स्टैक्स में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे लिंक लिस्ट की हेल्प से। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, दैट मीन्स हमें पहले लिंक लिस्ट पढ़ना है, उसके बाद हम स्टैक्स पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यू कैन स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ सकते हैं। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मूव टू द टॉपिक ऑफ ट्रीज। नाउ होल ट्रीज डिपेंड्स ऑन द रिकर्जन, ठीक है। आपको ये पता है ना, तो रिकर्जन पूरा ट्रीज पूरा रिकर्जन पे बेस्ड है। सो बिफोर मूविंग टू द ट्रीज यू शुड नो अबाउट द रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, लाइक रिकर्जन पार्ट, मोस्ट रिकर्जन पार्ट यू शुड नो अबाउट द रिकर्जन। सो तब जाके आप ट्रीज पढ़ सकते हो। एंड इन ट्रीज टू व्हाट यू कैन डू इज, हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वन इज हमारा बाइनरी ट्री एंड अनदर इज बाइनरी सर्च ट्री। There is no need to go to the other trees that are present in the data structures, because if you are preparing for a good company, they will mostly ask you the questions from the binary tree or the binary search tree. So these are some of the topics like you can go from the trees.
Now, after trees, what you can do is you can move to the topic of we have the priority queue, or heaps. It's also known as heaps. तो you can move to the priority queue or heaps. And जब भी आप कोई टॉपिक करते हो, लेक्चर पढ़ते हो, लेक्चर देखा, उसका कंटेंट देखा, उसके बाद आपने उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस किए, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके. तो प्रायोरिटी क्यू के बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव द टॉपिक ऑफ हैशिंग, हैश मैप. Now, after that, what you can do is you can have the topic of graphs. Now, graphs भी देखो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है ना जहाँ पे आके ये इंपॉर्टेंट है. मतलब अच्छी कंपनीज के लिए ग्राफ्स और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा ग्राफ्स होता है दैट डिपेंड्स मेनली ऑन द अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके. इन ग्राफ्स वी यूज अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक वी यूज ट्रीज, हम वी यूज हैश मैप. सो ट्रीज, हैश मैप, सॉरी, वी यूज हमारा या in graphs we use trees, we use hash maps, we use queues. So these are the topics that we use in the graphs. और इसीलिए हमें ग्राफ्स हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगने लगता है क्योंकि इसमें ऐसी चीजें आती है ना कि मतलब हमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का साथ में यूज करना पड़ता है. सो इट बिकम्स ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन अगर आपने सारे ऊपर के टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े तो इट विल नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड. So graphs mein what you can do is there are two important topics from which questions can be asked. One is breadth first search, another is depth first search. Okay. So these are two important topics that like interviewer can ask you the questions from these topics. Like आपने सुना होगा कि graphs में we have an important question that is the snake and ladder question. तो वो basically BFS पे depend होता है हमारा. ठीक है. BFS वाली चीज चल रही होती है. तो स्नैक एंड लेडर वाली चीज जो है या बाकी हमारे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं तो वो हमारा ग्राफ्स पे डिपेंड होता है. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज जो आपको इंटरव्यू के पर्पज से करना चाहिए एंड दिस इज द टॉपिक जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं. दैट इज हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग. डरते इसलिए हैं क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट रिकर्जन प्लस उसमें और एक चीज लगती है. तो रिकर्जन प्लस और एक चीज मतलब उसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन. सो ये दो चीजें अगर आपको रिकर्जन आता है ना तो आई कैन गारंटी यू आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ ही जाएगा. बट सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट लाइक हैव द कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन एंड रिकर्जन तो पहले ही टफ लगने लगता है तो उसके बाद उनको डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी टफ लगने लगता है. So यहाँ पे these are the topics that you should focus and one other data structure that you can focus on is tries हमारा. That is not that very important लेकिन हाँ आप मतलब पढ़ो तो सही है. ठीक है. आप पढ़ सकते हो. So these are the topics that you should know before like for the coding interview or for the coding round. Now technical round में भी आपसे अगर आप यही questions मतलब इसी से पूछे जा सकते हैं. So these are the topics that you should know. अगर अभी तक if anyone has any doubt so you people can ask. Now I will come to the queries of Nihar. Is there any perfect material you would prefer for the third year student? One thing I would suggest is that I am not like you should know that you should first if you can have the tutorial from the YouTube. I like if you know the you can have these topics. आप इनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करो. अगर आपको ये लगता है कि YouTube पे आपको कोई ऐसा ट्यूटोरियल मिल रहा है कि जहाँ से आप ये टॉपिक ऐसे लाइक सर्च करते करते आप ये टॉपिक्स पढ़ के फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो तो यू कैन दैट इज बेस्ट. बट आप का ये होता है ना कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या किसी भी मतलब किसी भी ईयर में हो तो यू शुड एटलीस्ट हैव द प्रॉपर गाइडेंस कि किस फ्लो में आपको जाना है क्योंकि कंटेंट तो ऑलरेडी इतना सारा अवेलेबल है. तो वन ऑफ द थिंग्स आई कैन सजेस्ट इज कि हाँ आप यूट्यूब से अगर आपको उतना कैपेबिलिटी लगती है कि हाँ यू कैन डू फ्रॉम यूट्यूब सो यू कैन डू इट. अनदर थिंग आई कैन सजेस्ट इज कि आप यूट्यूब पे जाके यू कैन हैव द कोडिंग ब्लॉग्स ट्यूटोरियल दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. So you can also have them. I will show you.
So you can move to the coding blocks, and here you can have the playlist. You can see the option of playlist, and here in the playlist section, yeah, in the section you can have the you can see here that free course learn C++ for beginners and college freshers. You can go there as they are free of cost. You can start watching the lectures अगर आपको ये लगता है, so these are free of cost. You can watch the sessions, and अगर आपको ये लगता है कि yeah, these sessions will help you, तो आप उसके बाद what you can do is you can उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इफ यू थिंक कि हाँ मतलब ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और ये चीज़ें बिल्कुल मतलब हाँ सही सही समझ आ रही है, तो यू कैन ज्वाइन द live batch or the yeah on or the online batch. You can have you can join those batches as well if you think that yeah this content is good for you. So what tips would you give to the fourth year student of CS about the data structure and algorithm? For the fourth year students, I would suggest just don't focus on the projects, just don't focus on the अगर आपके पास देखो जब भी कोई कंपनी आती है ना तो कंपनी के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज मस्ट. ओके, this is must you should have, and if you have the projects and other things that are the plus points but that are not must. अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आता है ना तो आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है ना तो दैट विल नॉट मैटर. ओके, दैट विल नॉट मैटर. लेकिन अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता और आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स 20 प्रोजेक्ट्स है ना तो वो मतलब समझो कि आई एम नॉट सेइंग वो किसी काम का नहीं है, बट या आपका मतलब कुछ उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा आपके लिए, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज द थिंग जो आपका बिल्कुल पता होना चाहिए. बाकी चीजें हो या ना हो लेकिन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स होना चाहिए. नाउ फॉर द फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले नहीं किया है तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू डिवोट एट लीस्ट, क्योंकि अभी वैसे भी पेंडेमिक तो चल ही रहा है. so at least what you can do is you can spend not less than 7 to 8 hours you should spend on your coding skills, so that you can develop them, and you can know all the data structures and you can know everything about a particular language. और आपको ये होना चाहिए कि डोंट फोकस ऑन एवरी ईच एंड एवरी लैंग्वेज. एक लैंग्वेज पे फोकस करना, इंटरव्यूअर विल नेवर गेट मतलब आपसे इम्प्रेस कि आपको ये लैंग्वेज भी ये लैंग्वेज भी ये लैंग्वेज भी आती है अनटिल आपको कोई एक लैंग्वेज पूरी नहीं आती. ऐसा नहीं करना कि मतलब मैंने ना अपने बाद में आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द रिज्यूमे बिल्डिंग. सो ऐसा नहीं होता कि मैंने ना C++ का भी थोड़ा पढ़ा, सी का भी थोड़ा पढ़ा, जावा का भी थोड़ा पढ़ा, तो डोंट डू दैट. आप एक लैंग्वेज पे फोकस करो, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि अभी तो वैसे भी टाइम तो कम है, बिकॉज यू आर इन फॉर एग्जाम्पल फोर्थ ईयर, तो टाइम तो वैसे भी कम है. तो व्हाट यू कैन डू इज you have to devote at least 7 to 8 hours every day, and you have to be consistent about the studies. तो आप क्या कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पार्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा. और उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक लेक्चर पढ़ा और उससे आपने एटलीस्ट नॉट लेस देन 30 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली. उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हो. तो एज सून एज पॉसिबल try to cover the data structure and algorithms, and at that very point don't think about the projects. बाकी projects बाद की बात है, लेकिन पहले आप data structure and algorithm part पे focus करना, ठीक है, for the fourth year student. अगर जो फर्स्ट ईयर से हैं या जो बाकी जिनके पास टाइम है, तो what they can do is within 6 months or 6-7 months what they can do is वो data structure and algorithm को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, right? उसके बाद what they can do is they can like regularly practice 2-3 questions from the lead code from the any platform, and after that simultaneously they can start their other they can build their other skills, like they can go for the web development, app development, or other skills, machine learning, in whatever they are interested, they can have that as well. But first thing that should be focused is data structure and algorithm. Don't get confused. Don't focus on projects. They will company will first they will
see about the data structure and algorithm. They will see in you about the data structure and algorithm part. So you should know this first and then go to the projects. If you have time, then go to the project. Go to the project part. Else, don't go to there. Only focus on data structure and algorithm. Okay. So, ma'am, what about the aptitude questions? Okay, aptitude questions. Okay. तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू कैन डू इज आप लीड कोड पे भी यू कैन हैव द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड द बेस्ट थिंग, हाँ आप जीएफजी से भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कर सकते हो. तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में वैसे भी मतलब ठीक है उतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, और जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के आते हैं वो बेसिकली आपकी लैंग्वेज से आते हैं, किसी एक लैंग्वेज से. और मतलब कोई भी ऐसे इन जनरल ऐसा जो क्वेश्चन हो जो इन जनरल हो तो उससे आ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैथमेटिकल वाला पार्ट होता है वो तो मतलब आप मतलब 12th तक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड रहा है तो उतनी लेवल के क्वेश्चन हम कर पाते हैं. करने भी है तो यू कैन हैव मनी प्लेटफॉर्म्स वायर यू कैन सॉल्व द एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कंपनी में कौन से लेवल के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मतलब होते हैं, तो यू कैन हैव दोज क्वेश्चंस. तो एप्टीट्यूड का उतना ज्यादा मतलब फोकस हम करते इसलिए भी नहीं है क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जो हमें पता होती है, मतलब हम तो कर लेंगे क्योंकि हमारा मैथ्स था तो कम से कम उतना तो हमसे हो जाएगा. अब अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो किसी भी कहीं पे भी जाके लाइक कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि कहीं पे भी जाके आप वो कर सकते हो. ठीक है. Should I learn ML AI extra as I had that as I okay heard that just MERN stack is not enough. शिवा आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो, आप डेटा स्ट्रक्चर इज मस्ट उस पे पहले करना, बाकी कहीं नहीं जाना. ठीक है. कोई कितना भी बोले नहीं मानना. पहले डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करना, उसके बाद जब आपको लगता है ना कि हाँ अब टाइम है, अब अगर आपको टाइम है ना तो आपको क्या चाहिए बेसिकली मतलब रिज्यूमे में दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए, राइट. तो आपका अगर एआई में मतलब एमएल में इंटरेस्ट है तो आप एमएल में जाना, अगर आपका वेब डेव में इंटरेस्ट है तो आप वेब डेव में जाना, अगर आपका एंड्रॉइड में है तो एंड्रॉइड में जाना, रोबोटिक्स में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना उसमें चले जाना. लेकिन कोई कुछ भी बोले ना कि मतलब फुल स्टैक का कोई ये वैल्यू नहीं है, आपको एमएल सीखनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है. आपको बस प्रोजेक्ट चाहिए दिखाने के लिए, लेकिन ये आप यहाँ तब मूव करना जब इस पे ना आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं निकाल लूंगा. लाइक कोई भी कोडिंग में क्वेश्चन, कोई भी कोडिंग में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए मैं मुझसे हो जाएगा, तब जाके मूव टू दीज. नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है ना तो तब तक यहाँ से उठना नहीं है, जब तक यहाँ मतलब तब तक यहाँ नहीं आना जब तक ये वाली चीज पूरी ना हो जाए. ठीक है. This is say like I'm saying this out of my own experience and I know the things that what things are going behind in the company. So अभी पहले like these are always a plus point. मतलब आपका ना इंटरव्यूअर मतलब ऑब्वियसली अगर आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के. तो लेकिन ये होता है ना कि अगर आपका डीएसए नहीं है ना तो मतलब पहले ही अटक जाते हो. तो इट इज बेटर पहले डीएसए उसके बाद आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, उसके लिए कुछ भी चूज कर लो जो आपका इंटरेस्ट है. The way our college is teaching DSA concepts have become really confusing for me and it seems difficult as at the same time the college is moving forward and tension increasing. Can you give some tips regarding this? I would suggest I would suggest that as I said earlier that you can watch the videos of coding blocks. You can watch the videos here. You can see here from the coding blocks you can watch these sessions. एंड आफ्टर दिस सेशंस देखो ये देखने के बाद अगर आपको ये लगता है ना कि मतलब ये सेशन सही है तो यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लास और द मतलब ऑनलाइन बैच. तो आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट दैट क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है जो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है. ओके. तो आई वुड सजेस्ट दिस विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस. नहीं तो अगर आपको कोई और भी अच्छा लगता है कोई दूसरा ऑप्शन तो यू कैन हैव दैट एज वेल. ओके. बिकॉज मतलब कॉलेज में ये होता है ना कि थोड़ा मतलब टाइम कम होता है और वैसे भी मतलब उतना फोकस नहीं होता एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे. आपको एक सेमेस्टर में जावा करा दिया जाएगा, दूसरे में सी करा दी जाएगी, तीसरे में पाइथन, चौथे में सी प्लस प्लस. तो इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक अच्छी मतलब ठीक है अगर आप आपके पास खुद इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं
इसी सीक्वेंस में जाना, और अगर आपको लगता है कि कहीं से भी आप ये सारे कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको आप ये वाले सेशंस भी देख के देखना, अगर आपको ये लगता है कि दी सेशंस और लाइक हाँ मतलब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो यू कैन ज्वाइन ओवर लाइव बैच और ओवर ऑनलाइन बैच। व्हाट अबाउट द इंटर्नशिप्स, इज इट नेसेसरी टू डू? हाँ मतलब इंटर्नशिप से आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। अगर आपने कहीं अच्छी जगह से इंटर्नशिप की है तो ऑब्वियसली कंपनी विल सी कि हाँ मतलब आपके पास इतने स्किल्स हैं, तो मतलब आप इंटर्नशिप कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि हाँ मतलब इंटर्नशिप वाली चीज आपको करनी है। Some companies ask guesstimates and case studies. How can we prepare for that? देखो GFG पे या आप कहीं से भी केस स्टडीज वाली चीज को कर सकते हो। वो उतनी इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए नहीं होती जितना उनके लिए कोडिंग राउंड इंपॉर्टेंट होता है। तो एंड केस स्टडी इज द थिंग जिसपे आपको मतलब ठीक है प्रिपेयर तो कर सकते हो, लेकिन वो आप गूगल से कहीं से भी जाके देख सकते हो कि अच्छा ये केसेस इस कंपनी में ऐसे केसेस मतलब आपको मिलते हैं जो आपको मतलब जिनकी आपको केस स्टडी करनी पड़ती है। यू कैन लाइक हैव दैट फ्रॉम द गूगल। लेकिन जनरली ये होता है ना कि जो केस स्टडी वाली चीज होती है ना, वो आपको उसी टाइम मतलब खुद से थोड़ा मतलब अपने लॉजिक से अपनी चीज अपने माइंड से तब जो हमारे दिमाग में आता है हम वो वाली चीज कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द लॉजिकल और बाकी माइंड बिल्डिंग वाली चीज, तो वो आप वैसे कर सकते हो। वट अबाउट RS अग्रवाल फॉर एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग? हाँ कर सकते हो कशिश। RS अग्रवाल से आप एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ दैट इज गुड बुक फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। उसके लास्ट में जो पार्ट जो आपके लास्ट में RS अग्रवाल के लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के या मतलब जो भी कंपनीज में पूछे गए हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो पूरी बुक वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, पीछे जाओ और वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सो यू कैन हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। I am doing Python, so can you please suggest specific topics from which the interviewer is asking the questions? देखो दुर्विल नकुम, सो व्हाट यू कैन डू इज आपके पाइथन से देखो पहले ही तो पाइथन मतलब ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनीज हैं आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी वही मैंने पहले ही बताया था कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन पाइथन व्हाट यू यूज इज आप डायरेक्टली आप क्या करते हो, आप डिक्शनरी यूज करते हो, DICTI और डिक्शनरी आप यूज करते हो, ठीक है। या आप क्या करते हो, आप लिस्ट कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो होता ये है ना कि आपको नहीं पता होता कि ये डिक्शनरी क्या मतलब है, ठीक है। जिस तरह डिक्शनरी के बदले हमारे पास जो मतलब हमारे पास जो C++ में या जावा में होता है वो हमारे पास होता है हैशिंग। तो जो हमारे पास हैशिंग में काम होता है वो डिक्शनरी में काम होता है। लेकिन अब ये नहीं पता होता ना, यहाँ तो पता चल जाता है क्योंकि ये जो पूरा कोड होता है ना हैशिंग में है बनाने का मतलब हैश मैप बनाने का, फिर उसपे जो भी ऑपरेशन होते हैं वो इम्प्लीमेंट करने का, ये हम खुद करते हैं। इसमें आप खुद नहीं करते हो, तो इसमें ये बना बनाया आपको DICT डिक्शनरी मिल जाता है, ठीक है। तो दिक्कत ये होती है कि आपको ये फिर पता नहीं होता कि ये पीछे क्या कर होता है। तो अगर आपसे मे बी पाइथन से आपसे यही होता है, पाइथन वाले इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि चलो बताओ मतलब डिक्शनरी, या देखो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएगी आप ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट जब आप मतलब ये तो मैं पर्टिकुलर किसी इसका नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ एटलीस्ट जब भी आप किसी मतलब कंपनी में जाते हो, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो यू शुड नो कि वो कंपनी हमसे क्या चाहती है या उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है या वो कंपनी किस बेस पे सर्विस बेस्ड है प्रोडक्ट बेस्ड है, उसी अकॉर्डिंग हम भी अपना मतलब प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि कंपनी कौन सी सर्विस दे रही है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमें भी अपनी कंपनी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करके जाना होता है और उसी अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो लेकिन अब ये होता है कि आपका अगर मे बी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं बस ये देखने के लिए कि क्या आपने बस मतलब ऐसे ही कीवर्ड्स यूज कर लिए, क्या आपने बस ऐसी लाइब्रेरी यूज कर लिया, आपने कुछ रिसर्च उस पर कर लिया या नहीं किया, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेस्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं HR राउंड में, वो आपसे मेनली एक जिस कंपनी में आप गए हो ना तो उस कंपनी से रिलेट पूछे जाते हैं। सो अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हो तो जिस कंपनी में आप जाते हो तो उसके उस पे पहले रिसर्च करना, उस पे देखना कि ये कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसी अकॉर्डिंग मुझसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेरे फील्ड से। तो ऐसे करना होता है, ठीक है।
shall be prefer recording session for TSA? देखो, mind, it is better to go for the live sessions, because in the live sessions what you can do is you can ask the questions in the session itself. Okay, आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप साथ साथ में डाउट्स को क्लियर करते जाते हो. एंड इन मतलब ऑनलाइन में भी रिकॉर्डेड सेशंस में भी जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, ऑनलाइन कोर्स होता है, उसमें भी मतलब होते हैं, मतलब आपके टीचिंग असिस्टेंट्स इन फॉर एग्जांपल इन कोडिंग ब्लॉग्स हमारा क्या होता है कि आपके मतलब अभी के लिए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक देयर आर लाइक लाइव एंड ऑनलाइन बैच. तो लाइव बैच में ये होता है कि वन मतलब ऐसे सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं वीकली, मतलब वीक में 4 बार या 3 बार जो भी. ऑनलाइन में ये रहता है कि आपके पास एक्सेस रहता है, लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत ये हो जाती है ना, एज लाइक हमने जो भी मतलब देखा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन में थोड़ा ये कि चलो उनके अपनी पेस से चलती है ना चीजें, तो जल्दी उतना हो भी नहीं पाता, जल्दी उतना कर भी नहीं पाते हैं. नो डाउट जो मतलब बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जिनका मतलब ये होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो उनका फिर थोड़ा लैग बिहाइंड करते हैं, एज लाइक जो हमने देखा है. सो इट इज बेटर टू गो फॉर लाइव सेशंस. लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको खुद पे ये चीज पता है कि नहीं मैं अपनी पेस के हिसाब से कर सकता हूँ, तो इट इज बेटर टू गो फॉर हमारा प्री रिकॉर्डेड सेशन. सो इट डिपेंड्स आप पे कि आप अपने आप को कैसे मतलब मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको जाना ही है तो यू कैन गो फॉर द लाइव सेशन, क्योंकि एक तो टीचर से आप क्लास में ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और दूसरा आप मतलब जो भी चीजें दूसरा आप रेगुलर क्लासेस तो करोगे ही, तो आपकी कंटेंट भी कवर होता जाएगा, आपके अपने पेस पे नहीं चलेगा, वो टीचर के या मेंटर के पेस पे चलेगा. सो इट इज बेटर टू गो फॉर द लाइव सेशंस. Do I have to be 3 4 something to be actually display recruiters my skill in DSA? Shiva, मैं समझी नहीं, please can you like ask your doubt again? DSA is including in coding blocks playlist, can we learn from that session? हाँ, प्रतिभा, you can like learn from the coding blocks sessions, जो भी आपका DSA वाला पार्ट है, आप यहाँ पे कोडिंग ब्लॉग्स पे जाना. कोडिंग ब्लॉग्स पे यू कैन सी कि बहुत सारे और भी सेशंस हैं, मतलब बाकी भी सेशंस है, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्स के, ग्राफ्स के अलग है, ट्राइज के अलग है, मतलब ट्रीज के अलग सेशंस हैं, तो यू कैन हैव दो सेशंस एज वेल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो यू कैन हैव दो सेशंस एज वेल. ठीक है. विच प्लेसमेंट एग्जाम इज गुड? अच्छा, बहुत सारे डाउट्स है. विच प्लेसमेंट एग्जाम इज गुड आफ्टर ग्रेजुएशन? डिपेंड करता है प्रतिभा, मतलब किसी के जो ड्रीम कंपनी आपकी हो, डिपेंड करता है. तो किसी की ड्रीम कंपनी होती है कोई फैंग लेवल की कंपनी, किसी की ड्रीम कंपनी होती है कोई स्टार्टअप, ठीक है, मैं खुद का मतलब स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, किसी की ड्रीम कंपनी कोई और होती है, तो वो आपकी इंटरेस्ट पे मतलब डिपेंड करता है. अब ऑब्वियसली अगर मुझसे आप पूछोगे कि कौन सी अच्छी कंपनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ मतलब गूगल अच्छी है ही है ऑब्वियसली. मेरी फेसबुक अच्छी कंपनी है जिसमें आई कैन गेट मतलब अच्छा खासा LPA. मेरी अमेजन इज अ गुड कंपनी, हमारी फ्लिपकार्ट इज अ गुड कंपनी जिसमें वी कैन हैव गुड मतलब अच्छा ऑफर हो सकता है. और जो ये कंपनी में बोल रही हूँ, दे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. किसी ने पूछा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या मतलब डिफरेंस है, मतलब जहाँ पे आपके मतलब जहाँ पे आपका ज्यादा जो काम होता है ना, वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेट होता है, मतलब मशीन से रिलेट आपको करना पड़ता है. एंड जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज है ना, जिसमें आपके सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक चाहे हेल्थ की, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई कंपनी है जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो दे आर सर्विस बेस्ड कंपनी. और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मतलब जहाँ पे आपके मतलब बाकी सारे प्रोडक्ट्स या बाकी सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो बेसिकली जहाँ पे आपका टेक्निकल काम ज्यादा होता है. ठीक है. तो गूगल, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, यू कैन हैव द माइक्रोसॉफ्ट, तो मतलब ये अच्छी कंपनीज हैं, तो इनमें से ही किसी को टारगेट बना लो और मतलब उसके लिए प्रिपेयर करो. तो ग्रेजुएशन के बाद इनमें से किसी भी कंपनी में जाओ, सारी अच्छी है. Would you prefer learning coding and going to the internship at the same time, or there is the best time to look for internships? I would suggest कि पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में try to focus on your skill development,
और आप उसमें कोडिंग सीखो, या जो भी अगर आपको लगता है मुझे प्रोजेक्ट सीखने चाहिए, जो भी आपका इंटरेस्ट, उसके बाद अगर आपका कोडिंग के बाद आपका टाइम बचता है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो कि मुझे क्या करना है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज आप प्रोजेक्ट बना लो, और थर्ड ईयर में इट इज गुड टाइम टू गो फॉर द इंटर्नशिप इन द थर्ड ईयर। नहीं तो अगर आपका सेकेंड ईयर में ही आपको लगता है कि मेरे पास इतनी स्किल्स हैं कि आई कैन डू द इंटर्नशिप, मतलब स्किल्स के साथ इंटर्नशिप करो। ऐसा नहीं कि आप बिना स्किल्स के इंटर्नशिप, मतलब वो तो मिल भी नहीं जाएगी ना। प्लस ये होगा कि मतलब आपके पास स्किल्स होगे तो इंटर्नशिप में आप उनका यूज कर पाओगे, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा बाद में कि जब आप जॉब करने लगोगे तो कैसा लगेगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स हो गए एंड यू कैन विद द हेल्प ऑफ दोस स्किल्स यू कैन डू द बेस्ट इन योर इंटर्नशिप। सो इट इज बेटर टाइम कि आप जब आपको जब लगता है कि मेरे पास इतनी स्किल्स हैं कि मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द इंटर्नशिप। बट जनरली जो लोग करते हैं व्हाट दे डू इज वो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से मतलब ज्यादा स्किल बिल्डिंग वाली चीज नहीं होती है, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज नहीं होती है, और थर्ड ईयर तक आते आते उनके उनमें स्किल डेवलपमेंट वाली मतलब स्किल आ ही जाते हैं। और मतलब इंटर्नशिप तो वैसे भी चाहिए, फिर तो टाइम होता भी नहीं है वैसे यहाँ पे भी, तो दे गो फॉर द इंटर्नशिप। तो आप में जब आपको लगे कि मेरे पास स्किल्स हैं और किसी कंपनी को मेरे स्किल के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू कैन हैव द इंटर्नशिप उस टाइम। I had knowledge of Java intermediate. Then shall I prefer recorded sessions? मैं as I said कि अगर आपको जावा में मतलब इंटरमीडिएट मतलब आई देखो इंटरमीडिएट इज अ रेफरेंशियल टर्म की मतलब किस किस बेसिस पे इंटरमीडिएट, किस लेवल का इंटरमीडिएट आप बता रहे हो, कहाँ तक आपको आता है। लेकिन ठीक है मतलब अगर आपको मतलब रिकॉर्डेड सेशन पे जाना है और आपको पता है कि हाँ मतलब आई कैन डू विथ माई पेस, तो आप रिकॉर्डेड सेशन पे जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब ज्यादा बेटर रहेगा कि मतलब एज आई सेड अर्लियर ज्यादा बेटर रहते हैं लाइव सेशंस, क्योंकि ये होता है ना कि आपका वन मतलब आप क्लास में ही जो भी डाउट्स होता है, प्लस आपका चलना है, क्लास है तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे कि अरे आज नहीं करूंगा कल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लाइव सेशंस में भी ये भी होता है कि कभी आप बोलोगे कि क्लास मिस हो गई तो क्या होगा, तो मतलब ये भी होता है कि आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाती है, तो मतलब वैसे भी बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो बाकी आपको अगर लगता है कि हाँ रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड पे जाना चाहिए तो यू कैन गो फॉर द प्री रिकॉर्डेड सेशंस, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उसमें भी कोई ऐसा ये नहीं होता। अच्छा 3 स्टार 4 स्टार एट कोर्सेज, do I have to be 3 star, 4 star, something to actually display recruiters my skills and DSA? देखो जनरली लोग क्या करते हैं ना कि अपने रिज्यूमे में लिख लेते हैं कि मतलब मैं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऑन कोड शेफ कोड फोर्सेस या कहीं पे, तो वो लिख लेते हैं ठीक है, या आई हैव ऑन इतने बैंडेज इतना ये किया इतना वो किया, तो जनरली लिख लेते हैं लोग। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली देखो ये तो होगा ही होगा ना, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स बहुत अच्छा है, मतलब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, अब जहां से भी आपने प्रैक्टिस करी है, तभी मैं बोल रही थी कि एक जगह पे पहले मतलब स्टिक टू वन प्लेस ओनली, ऐसा नहीं कि आज मेरा दोस्त यहाँ से कर रहा है मैं वहां से कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ना जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, तो इसलिए इट्स बेटर कि एक जगह पे रहो। ठीक है, तो आज आपका दोस्त कहाँ कर रहा है मैं कहाँ कर रहा हूँ वो अलग चीज है, तो इट्स बेटर कि आप उस चीज पे फोकस करो जहां पे आप हो। तो 3 स्टार 4 स्टार तो खुद ही बन जाओगे ना, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी आई होगी, आपका 3 स्टार 4 स्टार मतलब आपकी जो रैंकिंग है वो आपके मतलब ऑब्वियसली अच्छी होगी, तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। बट इट इज नॉट नेसेसरी, आप कोडिंग ग्राउंड में उस टाइम पे कैसा कर रहे हो दैट मैटर्स। ठीक है शिवा। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हेल्प्स ड्यूरिंग प्लेसमेंट। इथिंद्रा देखो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली विल हेल्प यू, क्योंकि मतलब पता चल जाता है कि आपके पास मतलब चलो आप एक जी सॉसर हो, या आपके पास पता चल जाता है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, कि मतलब हाँ ठीक है ही हैज डन सम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एज वेल, तो दैट विल हेल्प यू, प्रोजेक्ट्स विल हेल्प यू। बट मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली दैट थिंग विल हेल्प यू, ठीक है, वो आपका ऑब्वियसली दैट विल बी ऑलवेज अ प्लस पॉइंट, बट दैट विल नॉट ओनली बी द प्लस पॉइंट। ठीक है, सो दैट विल हेल्प। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू प्रेफर फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट? अरे मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब देखो कोडिंग करनी है तो अगर आपको मतलब बस कोडिंग करनी है तो यू कैन गो फॉर द लिनक्स और यू कैन गो फॉर द विंडोज, मतलब
अब डिपेंड करता है मतलब इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मैं ऐसा प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि आपका बस कोड ही तो चलना चाहिए ना, तो कोड ही चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एमएल करना है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, तो फॉर दैट आपके हाई एंड पीसीज होने चाहिए। तो डिपेंड्स किया आपकी मेमोरी, फिर आप उसके उस हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट है उस हिसाब से, और मतलब जितना आप पैसा दे सकते हो तो इस हिसाब से आप मतलब अपने सिस्टम्स ले सकते हो, ठीक है। I want to go in the field of robotics. So, is it necessary to learn advanced Python or basic knowledge will help me for the placement? I want to go for the field of robotics. So, is it necessary to learn advanced Python or basic knowledge will help me for the placements? Obviously, basic knowledge will not help you in the placement, because robotics is a field where you have to learn about the advanced things. बेसिक तो मतलब क्या है, बेसिक वर्ड मतलब बेसिक का मतलब ये थोड़ी है कि आप वेरिएबल्स क्या है वो क्या है, मतलब आप क्रिएट कैसे करते हो, आप इसमें वैल्यू कैसे डाल सकते हो। तो यू हैव टू गो इन द एडवांस पार्ट, क्योंकि रोबोटिक्स इज नॉट दैट इजी कि आप मतलब बेसिक से उससे काम चला सकते हो। तो यू हैव टू गो फॉर द एडवांस पार्ट अगर आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है। या अगर आपको प्लेसमेंट, देखो अगर आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, तो किसी भी लैंग्वेज को चूज करो, लेकिन उसकी आपको एडवांस डेप्थ में जाना है, एंड दैट इज मस्ट। How to start with AI ML if we are good in Python? Komal, what you can do is आप coding blocks पे यहाँ पे you can have the you can see here कि यहाँ पे आपके ना जो one of the like best mentors of coding blocks जो ML के AI ML के हमारे mentor है, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा बता दिया होगा। कोई आप सर्च कर लेना, I am not able to get it right now. Let me see. तो ये जो आपका क्वेश्चन है, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दियर कि आपको मतलब अच्छे मतलब अगर आपको पाइथन अच्छी आती है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एमएल। तो यू कैन गो हियर एंड क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल में उन्होंने बताया है, तो यू कैन सी, लेट मी चेक आपका वी आर लाइव। yeah, so this is like how to get started with machine learning। तो यहाँ पे आपको पूरा मतलब मिल जाएगा कि कैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। तो do watch this session and you will get to know कि आपको कैसे start करना चाहिए if you know a little bit Python। कोमल ma'am, up to 12th, Mayank, what are you asking? I am not getting you. How I know I am a perfect in a particular programming? अतुल, आप किसी मतलब एक आप कैसे जान सकते हो कि आप परफेक्ट हो प्रोग्रामिंग में? व्हाट यू कैन डू इज, जब आप किसी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस कर रहे हो ना, और आपको ये लगने लगेगा कि मतलब जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप जब वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये लगने लगेगा कि अच्छा, पहले तो ये कि आपने जो सोल्यूशन तब सोचा, तब जो आपके दिमाग में सोल्यूशन आया, तो एक तो ये कि वो सोल्यूशन आपका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस था, उसने आपका टीएलई नहीं दिया या वो सारी चीजें नहीं दी। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप मतलब कैसे ये बोल सकते हो कि मैं परफेक्ट हूँ किसी प्रोग्रामिंग में, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में इस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो एटलीस्ट अगर आप वो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में उसके आइडियाज आ रहे हैं कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस, या मैं इसको ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सबमिट करके और आप उसको करके देख रहे हो, यू आर नॉट डूइंग कि अरे देखा जाएगा, तो एट दैट वेरी पॉइंट यू कैन से कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। और अगर आपके मतलब ऑब्वियसली अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख के ये आपको लग रहा है कि अरे ये तो पहले किया हुआ है, मतलब ये तो पहले क्वेश्चन हमने किया है, ये तो आ जाएगा, या आप करके देख रहे हो और आपसे हो रहा है, तो यू कैन लाइक अकॉर्डिंगली से कि हाँ मतलब दैट मीन्स मुझे प्रोग्रामिंग आती है अच्छी। Charismita, can you please tell about pre-placement offers? Like, how can we get that? And generally, when is this
test conducted, and what is the most important section that the test focuses on. सबसे पहले बात तो प्री प्लेसमेंट ऑफर का जो बात आती है ना, प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब ये नहीं कि ये कोई टेस्ट नहीं होता है। प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब ये होता है ना कि जब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी आई, तो आपकी कंपनी ने ये मतलब कोई भी कंपनी आई आपके कॉलेज में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ना इस कॉलेज से मतलब कुछ मतलब प्लेसमेंट्स करानी है। तो एक तो हो गया कि आपके कॉलेज से प्लेसमेंट्स वाली चीज, तो प्लेसमेंट किसकी होती है? फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स की। लेकिन अब कोई कंपनी ये भी डिसाइड करती है कि आपके उनको क्या चाहिए, उनको मतलब इंटर्नशिप्स के लिए भी वो आती हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स, जो कंपनीज हमारे पास आती है ना, तो वो इंटर्नशिप्स के लिए भी आती हैं। तो इंटर्नशिप जनरली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आती हैं। तो अब क्या होता है ना, अब जो वो कंपनी है ना, प्लेसमेंट के लिए तो फोर्थ ईयर हो गया, इंटर्नशिप्स के लिए वो थर्ड ईयर के लिए आती है। अब अगर आपका इंटर्नशिप के लिए होता है ना इस कंपनी में आपका इंटर्नशिप के लिए होता है, तो आप जब इंटर्नशिप करते हो और इंटर्नशिप में इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड, वो कंपनी क्या करती है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में ही होते हो और आपने अच्छा किया इंटर्नशिप में और उनको दिख गया कि आपने अच्छा किया, तो दे विल प्रोवाइड यू द प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब वो आपको पहले ही दे देते हैं ऑफर कि चलो आप जब फोर्थ ईयर मतलब जब आप पास आउट हो जाओगे, जब आप फोर्थ ईयर के बाद मतलब आप यहाँ से आपका मतलब हम प्री प्लेसमेंट मतलब पहले ही ऑफर दे रहे हैं, तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली तब होता है जब आप इंटर्नशिप्स में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो कंपनी को दिख जाता है कि ये मतलब ये स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, तो दे विल गिव यू द प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो आपको फिर थर्ड ईयर में ही ऑफर मिल जाता है किसी कंपनी से, एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन ज्वाइन दैट वेरी कंपनी फॉर द फुल टाइम। तो इसी चीज को हम प्री प्लेसमेंट। अब इसमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स जो आपके फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। या जो कंपनी, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मतलब किसी पर्टिकुलर ऐसे सच होती नहीं है, तो लेकिन अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रही है, तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। चरिस्मिता, ठीक है, ओके। any project idea, also mention project you have made। देखो project idea तो बहुत सारे हैं। I have made some website, I have made a website that contains the details for the IAS and मतलब उसमें वो सारी details है। Some of the project ideas that I have also made is I have made a board that is हमारा healthcare chat board। You can make healthcare chat board as well। Another project idea that you can go for is I'm not able to remember this time, okay, okay, yeah, you can go for the music generation, and other project idea that you can go for is image captioning generator। एंड बाकी आपको देखना होगा तो आप यूट्यूब के सेशन पे जाके यू कैन सी कि क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स कोडिंग ब्लॉक्स में ये चीज़ भी है कि कौन से प्रोजेक्ट आइडिया बट आर द प्रोजेक्ट दैट यू कैन डू इन वेब डेवलपमेंट, दैट यू कैन डू इन AI ML। तो कौन से प्रोजेक्ट्स दीज आर देयर, यू कैन वॉच द सेशंस फ्रॉम देयर। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या करना है वर्षा? So now I will discuss some of the things that you should do while building your resume। तो now coming to the resume part, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, मुझे अपने resume में क्या नहीं लिखना है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने resume में क्या लिखोगे, अपनी अपना मतलब अपनी इंफॉर्मेशन तो लिखोगे ही लिखोगे। आप अपने प्रायर जॉब का एक्सपीरियंस लिखोगे। आप ऑनर्स एंड अवार्ड्स लिख सकते हो कि आपको क्या क्या मिला है, कौन से अवार्ड्स मिले हैं, यू कैन राइट अबाउट दैम एज वेल। अब जो चीज़ें आपको नहीं लिखनी चाहिए, आपको अपना मतलब इररेलेवेंट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का नहीं लिखना चाहिए कि मतलब मेरा फेसबुक पे ये प्रोफाइल है, वो है, ये है, तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, डोंट, ठीक है। आपको अपना इनकम के बारे में नहीं लिखना चाहिए कि मेरा इनकम कितना है, ये सारी चीजें। या जो आउटडेटेड या इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो बहुत मतलब पहले जो आपने किया होगा, कोई ऐसी चीज जो उस कंपनी से कोई रिलेट नहीं है, सो यू शुड नॉट राइट अबाउट द आउटडेटेड एक्सपीरियंसेस और द इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस अबाउट द कंपनी।
सो नाउ आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए मुझे अपना जो रेज्यूमे बनाना है ना उसमें सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। अब जो रेज्यूमे में सेक्शंस होंगे ना, वो सेक्शंस हमारे अलग अलग सेक्शंस होंगे। आपका रेज्यूमे में सेक्शन पहले आपका कांटेक्ट इन्फो होगा, मतलब आपका कांटेक्ट जो भी। उसके बाद आपको पहले ये डिसाइड करना है कौन कौन से सेक्शन बनाने हैं। आपका ट्रेनिंग एंड इन्फो का एक मतलब आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग किया है, इंटर्नशिप कौन सी की है, तो उसके बारे में एक सेक्शन, ठीक है। आपका मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज आपका होना चाहिए। अब उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, कि अगर आपने पास्ट में कुछ किया है काम तो वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आपके स्किल्स आप में क्या क्या है, लाइक आई नो द C++, आई नो द जावा, आई नो द ML, आई नो वेब डेवलपमेंट। आपके स्किल्स जो है आपको वो लिखना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं तो लिखो, नहीं तो नॉट नेसेसरी। You should know about the awards and achievements that you have, awards and achievements that you have, एंड ऑल्सो यू शुड राइट अबाउट योर प्रोफाइल, कि मेरी मतलब गिटहब पे ये प्रोफाइल है। जनरली प्रोफाइल किस किस की लिखी जाती है, वन इज आपका गिटहब, ठीक है, जहाँ पे आपका फिर देखा जाता है ओपन सोर्स वाली चीज। अनदर आप किसका लिख सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का जहाँ पे आपकी अच्छी रैंकिंग है, लाइक 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, मतलब ऐसे आपकी जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म की रैंकिंग लिख सकते हो। तो जनरली ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। आप किसी भी कंपनी में मतलब जाते हो तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस कंपनी के से पहले रिसर्च कर लो, मतलब रिसर्च अबाउट द कंपनी। और जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो जो आपका रिज्यूमे में होता है ना, डो लाइक कम से कम एटलीस्ट मेक श्योर कि जो आपने रिज्यूमे में लिखा है ना वो सही में आपको पता है, झूठ वूठ नहीं लिखना है, या कहीं से प्रोजेक्ट उठा के छाप लिया तो वो सब नहीं लिखना है। एट लीस्ट यू शुड नो कि मतलब ये वाली चीजें मैंने लिखी हैं तो ये मुझे सही में आती है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू कि आपके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो आपको आता है वो रिज्यूमे में लिखना है, बिकॉज सो मेनी चांसेस होते हैं कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वेरी पोर्शन जो आपने मतलब फ्रॉम योर रिज्यूमे आपसे वही पूछा जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप रिज्यूमे में जो लिख रहे हो वो सही में आपके पास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ना थोड़ी सी जावा आती है, मतलब बस सिंटेक्स आता है और मैं लिखूं कि मुझे ना जावा आती है, मतलब बड़ा बड़ा जावा आती है, तो दैट शुड नॉट बी द थिंग। अब उसके बाद बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू सम ऑफ द टिप्स आर दैट यू शुड मेंटेन मतलब आपकी जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लाइक उसमें क्या क्या आता है आपको, हैंडशेक अच्छे से करना है आपको, बाकी सारी चीजें मतलब आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर वाइल इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। बाकी वो सब नहीं लिखना है, एज आई सेड अर्लियर, वो सब नहीं लिखना है जो आपको नहीं आता है, जितना आता है उतना लिखना है, जो नहीं आता वो नहीं लिखना है। और कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि चलो बताओ आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपसे पूछा जा सकता है कि आप लाइक why are you see yourself after 5 years, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप हमारी कंपनी में क्या कैसे काम करोगे, what do you know about our company। तो कंपनी के बारे में भी बिफोर ज्वाइनिंग द इंटरव्यू, बिफोर गोइंग इन एन इंटरव्यू यू शुड नो अबाउट द कंपनी, ताकि उनको भी लगे कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दिस एंड दैट। तो मतलब इसलिए दीज आर सम ऑफ द पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर। तो अब दीज आर सम ऑफ द टिप्स फॉर रिज्यूमे बिल्डिंग। अगर कोई और डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क, नहीं तो फिर वी विल हैव लाइक हम अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कमिंग टू द रेफरल्स, यू शुड आस्क फॉर द रेफरल्स ऑन द लिंक्डइन। लिंक्डइन पे यू कैन आस्क द रेफरल्स, अगर आपको लगता है ना कि मतलब कोई अच्छा कहीं पे मतलब कोई आपका सीनियर या किसी कोई भी आपका हु कैन हेल्प यू, यू शुड आस्क फॉर द रेफरल्स के आई एम लाइक इन द रेफरल्स व्हाट यू कैन डू। ऐसे नहीं करना कि मतलब हाई हाई लिख के छोड़ दिया, तो ऐसा सब नहीं होता। रेफरल्स के लिए यू शुड एटलीस्ट नो कि हाउ टू आस्क फॉर अ रेफरल, मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ कि हाई मैं ये हूँ, मैं इस कॉलेज से हूँ और आई हैव दीज स्किल्स, आई वांट कि आप मेरे मतलब कॉलेज में आप मुझे रेफर कर लो अपनी कंपनी में फॉर द इंटर्नशिप और फॉर द प्लेसमेंट्स। तो ये सारी चीजें थोड़ा लिखनी होती है, अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ लिखना होता है। ये नहीं कि आपने हाई मुझे रेफरल दे दो और छोड़ दिया, तो दीज शुड नॉट बी द थिंग्स। एंड आस्क फॉर एज मेनी रेफरल्स एज पॉसिबल, so that will help you. Yeah, I will write my LinkedIn profile here. My LinkedIn profile is my LinkedIn profile is Mohsin Ashraf,
एंड यू कैन ऑल्सो कंटेक्ट मी अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए।